Okay. How do bearings Up. work? Bearings are used to reduce the friction between two objects that are in linear or circular motion against each other. The first intuition came from Leonardo da Vinci in his studies regarding friction, but the first patent was filed only in 1794 by Philip Vaughan of Carmarthen. Then, a Parisian bicycle mechanic named Jules Serret was able to patent the first ball bearing on August 3, 1869. This invention allows him to win the first cycling race in history, the Paris-Rouen race. In this video, we will see how bearings work and which are the main bearing types. More than 10 years in the industry has led JAS to become the qualified partner for some of the most important mechanical engineering companies, providing any type of bearing from different manufacturers. Let's take a closer look at a classic ball bearing. By decomposing and sectioning it, its components can be analyzed. The first elements that immediately get our attention are the steel balls. They represent the rolling elements, and they are held together by a cage, which can come in different shapes, and it's made of low friction materials. Then we have the inner ring, usually the one that moves, and the outer ring, both with a groove, which can be more or less deep in order to make the rotary elements glide. It is very common for the bearing to also be shielded. The shield can be made of metal for dust protection, or it can be made of plastic, preventing liquid infiltrations. They are placed in specific locations between the two rings so that they can protect the balls and the cage from external agents. At the same time, they can retain oil or grease inside the bearing, keeping it lubricated for its entire life cycle. In order to work correctly, bearings need a certain radial and axial clearance, so that when they reach the working temperature, their thermal expansion won't lead to over-tightening, which would cause the bearings to wear, or in worst case, even a seizure. There are many different types of bearings, but the three main categories are radial bearings, angular contact bearings, and axial bearings. At the same time, rotary bearings can be divided into ball bearings or roller bearings. The three main categories just mentioned differ according to load direction. So, radial bearings are used to withstand forces which are perpendicular to the axis. Angular contact bearing are used to withstand both perpendicular and axial loads. And axial bearings are used to withstand axial forces. The rotary components of the rolling element bearings make the movement easier. They are balls, as shown before, but also rollers, placed between the fixed part and the moving part. Ball bearings are among the most used bearings. The radial ones can be classified as single roll bearings, the most common type, or double roll bearings, which can withstand high radial loads. Among the radial ball bearings, we also find the self-aligning bearings that have two rings of balls. This type has an inner ring with two grooves placed side by side, while the outer ring has only one hemispherical groove. This system allows the inclination of the two rings' axis during the functioning. There are also angular contact ball bearings that have either one or two rings of spheres. They typically have an oblique position respective to the axis of rotation of the load line passing through the contact points between the balls and the rings. They can withstand higher radial loads and axial forces. Finally, it could be noted that all these varieties have an axial configuration.
in order to withstand a mostly axial load. They are also called thrust bearings. Another major type of rotary bearings are the so-called roller bearings used when very high accuracy is required. They have the same categories, radial, angular contact, and axle bearings. But roller have different shapes depending on the type. This is another difference between these and ball bearings. Radial bearings with cylindrical rollers are the most common type. If they have small rollers, they are called needle roller bearings. And thanks to their compactness, they are used when space is limited. They can only withstand radial loads. There is another variety, spherical roller bearings, which have cask-shaped rollers in order to allow inclining the rotation axis of the two rings. Tapered roller bearings are an oblique version and are used in case of combined load. This type of bearings are generally used in pairs, and they usually have inverse taper. All of these varieties can also have axial configuration in order to mainly withstand an axial load. They are also called thrust bearings. There are many types of bearings. The most common ones are plain bearings, also called sliding bearings or slide bearings, are made of two different parts. They don't have rotary elements. In fact, they work thanks to a thin porous bronze foil, which is covered by a layer of Teflon. The foil is placed between two elements of the bearing. These bearings are built to withstand high loads, and they can also bear misalignment. Linear motion bearings are designed to provide movement in one direction. They are usually called slides, and there are both linear ball bearings and linear roller bearings types. Magnetic bearings substitute rotary elements thanks to a magnetic induction, which allows them to be frictionless and avoid lubrication. As a result, they are very efficient in every condition, even in extreme temperatures. But one should always pay attention to the Curie temperature of the magnetic system. Bearings are one of the most used mechanical parts, and there are many varieties of them. So it is important to consider the area of use when choosing the right bearing. The reference standard for bearings is DIN ISO 281, which provides a formula for calculation of bearings durability. Given the basic dynamic load coefficient of the bearing, C, the equivalent dynamic load Okay. खत्म. Yes. अपना माइक बंद करें. This was to just introduce कि bearing का थोड़ा सा एनिमेशन बताने के लिए था कि आप सभी जानते हैं bearings आप सबने देखी हैं. तो okay. ठीक है. So we will start now. कि अब कोई बता सकता है कि बेयरिंग का काम क्या होता है? बेयरिंग का काम क्या होता है? रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग तो पढ़ रहे हैं, ये तो एक क्लास है बेयरिंग्स की, ठीक है. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी व्हाट इज अ बेयरिंग एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ बेयरिंग. बेयरिंग का फंक्शन बताइए. Who will tell? Supporting the shaft. Supporting the shaft. Yes, support the shaft.
शाफ्ट को सपोर्ट करके करेंगे क्या, ये बताइए। यही काम होता है बियरिंग का। हाँ, बताएं भाई। और कोई? नो, एनीवन? साहिल ने जवाब दिया सपोर्टिंग द शाफ्ट। हितिक, मोमिन अब्दुल्ला, मुगीज एंड अमीन, मोहम्मद अमीन, बताएं भाई Sir, क्या होता है। हाँ बताइए। sir, to reduce the friction between two shafts. बिटवीन टू शाफ्ट्स, ओके चलिए। Shafts नहीं। ओके चलिए ठीक है, हाँ। कुछ सही सही तो एग्जैक्ट तो नहीं है, बट सही सही नहीं है। चलिए पहले तो हम ये देख लेते हैं कंटेंट क्या क्या है, हम इस यूनिट में पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, पहली चीज हम जो पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। ठीक है, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है ना, कितना लोड बियर कर सकती है कोई बेयरिंग, वो हम देखेंगे। एंड देर इज सम relationships, load life relationship and equivalent bearing loads का रिलेशनशिप देखेंगे। ठीक है, ये क्या होता है ये भी समझेंगे, कोई बियरिंग कितना लोड बियर कर सकती है। ठीक है, वो देखेंगे। ठीक है, अच्छा अगर आपको डिजाइन करना है तो मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग, आपको कंपोनेंट्स बनाने हैं, ठीक है ना, एंड नाउ यू हैव टू परचेज इट फ्रॉम। बेयरिंग आपको अपने मशीन में इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना, तो अब आप बैठ के बेयरिंग नहीं डिजाइन करें। ठीक है, आप अपनी डिजाइन पैरामीटर के बेसिस पे बेयरिंग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, बेयरिंग सेलेक्ट करते हैं कि आप मशीन डिजाइन कर रहे हैं, उसमें इतना लोड लग रहा है, इतनी जगह है आपके पास, तो उस लोड को सपोर्ट करने के लिए आपको बियरिंग कौन सी लेनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये आप सीधे सीधे मैन्युफैक्चरर के कैटलॉग से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यू डू नॉट सिट एंड डिजाइन दी बेयरिंग। बेयरिंग आप बेयरिंग बैठ करके डिजाइन नहीं करने लगते। ठीक है, ओके। फिर डिजाइन हम डिजाइन बेस्ड ऑन क्या नाम है, साइक्लिक लोड्स एंड देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक टर्म आएगा आपको देखने को मिलेगा, वी बुल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है। ठीक है, वी बुल डिस्ट्रीब्यूशन, वी विल सी कि कोई बियरिंग की लाइफ कितनी हो सकती है, क्योंकि एक बियरिंग है, आप दो बियरिंग्स आप सेम बियरिंग्स लीजिए। ठीक है ना, एक को आप चलाइए भाई कितना, 10,000 आरपीएम से, 10,000 आरपीएम की स्पीड से चलाइए, और उसी दूसरी सेम बियरिंग को आप चलाइए 5,000 आरपीएम की स्पीड से। ठीक है, तो वहां पर देखना है कि उसकी लाइफ, सर्वाइवल कितना लाइफ चलेगी वो। ठीक है ना, या फिर लोड चेंज कर दीजिए उसी बेयरिंग पे, इस पे 1 किलो न्यूटन, इस पे 10 किलो न्यूटन। ठीक है, तो बेयरिंग लाइफ पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, एंड एट लास्ट वी विल सी टेपर रोलर बेयरिंग। ठीक है, टेपर रोलर बेयरिंग में हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर का सिर्फ थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस है। ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल डू द न्यूमेरिकल्स एज वेल एज, इन सभी टॉपिक्स हम थोड़ा सा डेप्थ में हम इसकी स्टडी करें। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट। नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, तो बेयरिंग क्या होता है। बेयरिंग इज अ मैकेनिकल एलिमेंट दैट परमिट्स रिलेटिव मोशन, between two parts such as shaft and the housing with minimum friction by reducing friction। ठीक है ना, ठीक, तो बेयरिंग का काम क्या होता है भाई, that permits relative motion and ऑल्सो रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है ना, रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन आएगा, बट ऐसा एलिमेंट हो जो कम से कम फ्रिक्शन लगाए। ठीक है ना, कम से कम फ्रिक्शन उस पर लगे। तो फंक्शन ऑफ बेयरिंग क्या होता है। फंक्शन ऑफ बेयरिंग्स आर एज फॉलोज। ठीक है, द बेयरिंग एंश्योर्स फ्री रोटेशन ऑफ द शाफ्ट एंड द एक्सेल विद मिनिमम फ्रिक्शन। बेयरिंग सपोर्ट्स द शाफ्ट, ठीक है, एंड or the axle and holds it in the correct position, ठीक है, holds it in the correct position।
and the third one is what? Bearing takes up the forces that acts on the shaft, ठीक है, that acts on the shaft or the axle and transmits them to the frame or the foundation, ठीक है ना. बेयरिंग का काम होता है क्या? लोड को बियर करना, लोड को बियर करना, ठीक है. ठीक, तो दीज आर थ्री functions, main functions of the bearing. These are the three main functions of the bearing. ठीक है. Okay, coming to, we are having different types of bearings. ठीक है, ये सब आपने देखा होगा. इसमें जो सबसे कॉमन बेयरिंग जो आपने देखी है वो ये वाली देखी, ठीक है ना, ये डीप ग्रूव बॉल बेयरिंग्स, ठीक है ना. यही बेयरिंग सबसे ज्यादा कॉमनली सबने देखी है. कभी आप बचपन में साइकिल रिपेयर कराने जाते होंगे तो वहां पर भी देखी होगी, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी मशीनरी में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमनली यूज्ड बेयरिंग है, ठीक है. तो वी ऑल हैव सीन दिस. वी माइट नॉट हैव सीन अदर वन, बट वी विल सी इन दिस लेक्चर, इन दिस यूनिट, कि इन सब का ये सब काम कैसे करती हैं और हमें बाकियों की जरूरत क्यों पड़ी, बाकियों की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है. वन ऑफ द बेयरिंग्स shown here is this one, ये वाली, ठीक है. इसमें थोड़ा सा ये बाकियों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है, ये थोड़ा सा बाकियों से अलग है, ठीक है. एंड वी विल स्टडी दिस वन अलोन इन दी सिक्स्थ यूनिट. सिक्स्थ यूनिट में हम इसको अलग से इसको स्टडी करेंगे, एंड इट इज नोन एज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग. sliding contact bearing, ठीक है. So we are having deep groove ball bearing, self aligning roller bearings, cylindrical roller bearings, ठीक है, cylindrical roller bearings, self aligning ball bearings, ठीक है, tapered roller bearings, and we have thrust bearing, angular contact bearing and needle bearing, ठीक है. अभी देखेंगे इसको कि क्या क्या होते हैं ये सब, ठीक है. तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेयरिंग को हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं. पहला है क्या? डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बेयरिंग, ठीक है. तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बेसिस पे हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. व्हाट? फर्स्ट वन इज रेडियल बेयरिंग एंड सेकंड वन इज थ्रस्ट बेयरिंग और एक्सियल बेयरिंग, ठीक है. रेडियल बेयरिंग में जैसे आपने वीडियो, एनिमेटेड वीडियो में देखा था, उसमें क्या था? अलोंग द रेडियस या फिर एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस ये बाहर की तरफ आपकी एक्सिस है, एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर लोड लग रहा है, ठीक है ना, या अलोंग द रेडियस अगर लोड लग रहा है बेयरिंग पे, देन दैट इज एक्सियल बेयरिंग, सॉरी रेडियल बेयरिंग. एंड इफ अलोंग द एक्सिस लग रहा है लोड, ठीक है, अलोंग द एक्सिस लग रहा है लोड, ठीक है, अलोंग द एक्सिस अगर लोड लग रहा है, देन यू कॉल इट थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक है, थ्रस्ट बेयरिंग, ठीक. सो वी विल स्टडी अबाउट रेडियल एंड थ्रस्ट बेयरिंग आल्सो, ठीक. नाउ कमिंग टू द टाइप ऑफ फ्रिक्शन, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ, सॉरी ये मिस्टेक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्रिक्शन. टाइप ऑफ फ्रिक्शन, टाइप ऑफ फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है, ठीक है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. वैसे तो फ्रिक्शन कितने टाइप के हैं भाई? फ्रिक्शन कितने टाइप के आप लोगों ने पढ़े हैं? बेसिकली देयर आर स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, ठीक है. आपने ये देखा होगा कि किसी चीज को सरफेस पे स्लाइड करना ज्यादा टफ होता है, ठीक है ना, ज्यादा टफ होता है. लेकिन उसी सरफेस पे, ठीक है, इस बॉल को या सिलेंडर को आप हल्का सा पुश कर दीजिए तो ये जो सिलेंडर है वो रोलिंग मोशन में जाता है, ठीक है ना. तो रोलिंग ज्यादा आसान होती है. इसका रीजन यही होता है कि क्या, रोलिंग मोशन में फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन इज लेस, फ्रिक्शन इज लेस इन रोलिंग, ठीक है, ठीक. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेयरिंग्स, one is rolling contact bearing and another one is sliding contact bearing. Sliding contact bearing के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में
नेक्स्ट 6th यूनिट में पढ़ेंगे, एंड इन दिस यूनिट वी विल ओनली कंसीडर रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, ठीक है भाई। अगर आप देखें रेडियल बेयरिंग्स की बात की जाए, रेडियल बेयरिंग्स में आपका हमेशा जो फोर्स, जो लोड लग रहा होता है वो अलोंग द रेडियस ऑफ द बेयरिंग और रेडियस ऑफ द शाफ्ट, या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट लगेगा लोड हमेशा, ठीक है ना? हमेशा, चाहे वो आपकी बॉल बेयरिंग हो, चाहे आपकी वो रोलर बेयरिंग हो, ठीक है? अभी आपको पता लगेगा कि बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग में फर्क क्या होता है, वैसे आप फिगर से देख के बता सकते हैं, ठीक है? बॉल बेयरिंग्स में यू हैव रोलिंग एलिमेंट्स एज बॉल्स, ठीक है ना? ये छोटी छोटी स्फेरिकल बॉल्स हैं। But in roller bearings, you have cylindrical rollers as the rolling element, ठीक है? यहाँ पे balls हैं, यहाँ पर आपके cylinders हैं, ठीक है? ठीक, अच्छा, तो इसमें फर्क क्या होता है? हम कुछ जगह सिलिंड्रिकल रोलर बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं, कुछ जगह बॉल बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि किस टाइप की बेयरिंग का इस्तेमाल कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से आपके पास थ्रस्ट बॉल बेयरिंग्स हैं, ठीक है? तो कुछ नहीं, अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आपका ये एक्सिस ऑफ द शाफ्ट हो गई, एंड द शाफ्ट विल रोटेट लाइक दिस, बट द लोड इज एक्टिंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना? अलोंग द एक्सिस, ठीक है? दैट मीन्स आपका ये अलोंग द एक्सिस लग रहा है, तो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज थ्रस्ट बेयरिंग और एक्सियल बेयरिंग, ठीक है? एक्सियल बेयरिंग, ठीक। रोलिंग एलिमेंट डिफरेंट हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपका रोलिंग एलिमेंट बॉल्स हैं, रोलिंग एलिमेंट स्फेरिकल बॉल्स हैं, एंड हियर यू आर हैविंग रोलिंग एलिमेंट्स एज दी सिलिंड्रिकल रोलर्स, ठीक है? सिलिंड्रिकल रोलर्स, ठीक। तो एक्सियल बेयरिंग एंड रेडियल बेयरिंग्स में डिफरेंस आपको पता चला? Can you tell me the difference between axial bearing and radial bearings? बताएं भाई, एक्सियल बेयरिंग और रेडियल बेयरिंग्स, एक्सियल बेयरिंग्स एंड रेडियल बेयरिंग्स में क्या फर्क है? These are also known as axial bearings, ठीक है? बताइए भाई, हितिक, अमीन, अब्दुल्ला, मुगीज, साहिल, tell me what is the difference between radial bearings and axial bearings? बताएं भाई। हाँ अब्दुल्ला, बताइए। सर एक्सियल बेयरिंग में थ्रस्ट है ना, जो पैरेलल टू द एक्सिस लगता है व्हेन इट रोटेट्स। यस, इट इज वेरी सिंपल। नाम में ही है, ठीक है ना? रेडियल बेयरिंग में अलोंग द रेडियस लगेगा, अलोंग द रेडियस लोड लग रहा है, और एक्सियल बेयरिंग में अलोंग द एक्सिस लोड लग रहा है, बस सिंपल, ठीक है? इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ये तो आप लोग बता सकते थे। चलिए, ठीक है। क्या बताना था सर? डिफरेंस ही बताना था ना? हाँ, यही बताना था आपको, ये तो बहुत आसानी से बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सियल एंड रेडियल बेयरिंग। कमिंग टू स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स क्या होती हैं, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डेफिनेशन वाइज ना जाकर के पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है? अभी आपने देखा था कि जो रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स होती हैं, तो उसमें आपने ये देखा था कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट दिखता है, ठीक है? ये रोलिंग एलिमेंट्स लगे हुए हैं, ठीक है? ठीक है, एंड ये वाला जो पोर्शन है शाफ्ट इसमें इंसर्टेड है, एंड दिस रोटेट्स, ठीक है? तो ये रोलिंग एलिमेंट्स आपस ये अपनी जगह पे रोल करते हैं,
ठीक है ना, मूव भी करते हैं आगे की तरफ और रोल भी करते हैं, ठीक है। एंड दैट्स हाउ दे रिड्यूस द फ्रिक्शन एंड अलाउज द रिलेटिव मोशन को अलाउ करते हैं, रिलेटिव मोशन को अलाउ करते हैं, ठीक है। बट देयर आर सम बेयरिंग्स जिसमें अगर आपके पास ये जो अरेंजमेंट है, ठीक है ना, यहां से अगर हम, ठीक है, ये क्या करें, बॉल्स को हटा दें, रोलर्स को हटा दें या रोलिंग एलिमेंट को हटा दें, ठीक है, ठीक। और यहां पर क्या भर दें भाई हम लोग, यहां पर हम लोग फिल कर दें एक लुब्रिकेंट, ठीक है, ऑयल भर दें, ठीक है, ऑयल भर दें, ठीक। तो क्या होगा भाई, ऑयल भर देंगे तो एक जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, आपका फ्रिक्शन तो ऑलरेडी रिड्यूस हो जाएगा, ये सब तो हम सब मानते हैं, ठीक है ना, कि लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर दो सरफेसेस के बीच में आ जाता है तो दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है, दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन। तो यहां पर वही चीज दिखा रखी है क्या, कि ये आउटर केसिंग है, ठीक है, एंड दिस इज द शाफ्ट, और इन दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है हमने, ऑयल, वी हैव ऑयल इन बिटवीन द शाफ्ट एंड द हाउसिंग, इसको हम क्या कहते हैं, हाउसिंग भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि वेन एवर दिस शाफ्ट मूव्स, ठीक है ना, दिस शाफ्ट मूव्स एट अ हाई स्पीड, ठीक है, एट अ हाई स्पीड, वेरी वेरी हाई स्पीड, तो क्या होगा, ये जो ऑयल है, मान लीजिए कि जब ये इस तरफ मूव कर रहा है तो यहां पे जो ऑयल है इसको ये सक करेगा, ठीक है ना, इधर खींचेगा और इधर तेजी से फेंकेगा, ठीक है ना, एंड दिस ऑयल फिर अगेन मूव एंड कम बैक्स, ठीक है ना, एंड जितना ज्यादा तेज मूव करेगा उतनी तेजी से ये ऑयल वापस यहां आएगा। जब ये वापस यहां पर आएगा, जो जितनी तेजी से आएगा, तो क्या होगा कि ये कन्वर्जिंग सेक्शन में पंप कर रहा है, इस चीज को कन्वर्जिंग सेक्शन में पंप कर रहा है, तो होगा क्या कि ये यहां पर इसको प्रेशराइज करेगा, और ये प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये इस शाफ्ट को लिफ्ट कर देगा, क्या कर देगा, लिफ्ट कर देगा, एंड दैट्स हाउ it supports the load and as there is no contact between the housing and the journal, तो फ्रिक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, ठीक है ना, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। और अगर आप मोशन की बात करेंगे तो इन दोनों सरफेसेस के बीच में कौन सा मोशन हो रहा है, स्लाइडिंग मोशन, ठीक है, स्लाइडिंग मोशन, ठीक। सो दिस इज हाउ, हाँ बताइए सर, ये ऑयल के जगह ल्यूब्रिकेंट मतलब ग्रीस यूज किया तो क्या होगा? आप ग्रीस, देखिए ग्रीस जो है, देखिए अब ये हम लोग पढ़ेंगे कि किस टाइप का लुब्रिकेंट हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि लुब्रिकेंट जैसे बेयरिंग वगैरह या मशीन पार्ट्स में अलग अलग टाइप के लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लोड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डिपेंडिंग अपॉन द लोड, फॉर एग्जाम्पल आप घरों में आपके सिलाई मशीन होगी, सबके घर पे है, आपके घर पे है सिलाई मशीन? हाँ सर, है ना। तो देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो यू परचेज अ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, ठीक, हाँ, और उस ऑयल को आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अलावा कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, वो एक लुब्रिकेटिंग ऑयल है आपके पास सिलाई मशीन वाला, और दूसरा लुब्रिकेटिंग ऑयल जो जैसे क्या नाम है, जहां हैवी मशीनरीज इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है, उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल। अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप बाइक का लुब्रिकेटिंग ऑयल है आपके पास, यू हैव द लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑफ बाइक, ठीक है ना, जो बाइक में पड़ता है, ठीक है, और जो आपके यहाँ पे सीविंग मशीन जो है उसका लुब्रिकेटिंग ऑयल, सिलाई मशीन का जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल। आप बाइक का लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर यहाँ डाल देंगे तो क्या होगा, सीविंग मशीन में
ये बाइक, ये सिलाई मशीन चलेगी ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वो इस चीज के लिए हाँ डिजाइन सर। ही नहीं की गई। ये अगर आप हाँ बाइक का लुब्रिकेटिंग ऑयल सिलाई मशीन में डाल दीजिए, ठीक है, तो दिस इज वेरी थिक। क्यों सर, इसकी वो तो ल्यूब्रिकेंट है ना। नहीं भाई, एवरी लुब्रिकेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एवरी लुब्रिकेंट हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। बाइक में जो लुब्रिकेटिंग ऑयल पड़ता है वो उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, क्योंकि बाइक में जो लोड है उसके हिसाब से वो बनाया गया है, ठीक है। वी विल सी दिस इन 6th यूनिट, ठीक है, कि अलग अलग लुब्रिकेंट ऑयल हम कहाँ, कौन कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस लुब्रिकेटिंग ऑयल इज हैविंग low viscosity, very low viscosity, 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 and it is what, very thin कह सकते हैं, पतला सा होता है, ठीक है ना, बहुत फ्लूडिटी होती है। बट इन बाइक यू आर हैविंग रिलेटिवली हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कोसिटी एंड रिलेटिवली थिक, थिक लुब्रिकेंट होता है, थिक लुब्रिकेंट होता है। और हैवी मशीनरी में जाइएगा, और हैवी मशीनरी में जाइएगा जैसे इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है, तो वहां पर विस्कोसिटी और बढ़ जाती है, विस्कोसिटी और बढ़ जाती है, और थिकनेस और बढ़ जाती है, थिक, थिक मतलब गाढ़ा, ठीक है, तो आपका लुब्रिकेंट और गाढ़ा हो जाता है। तो ग्रीस वगैरह जो जितना गाढ़ा लुब्रिकेंट होता है, वो जितना ज्यादा हाई लोड होता है, हैवी लोड होता है, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके लोड पे, लोड पे। एंड देर आर सम केसेस, देर आर सम केसेस वेयर यू यूज सॉलिड लुब्रिकेंट, सॉलिड लुब्रिकेंट, ठीक है। अभी तो आप लिक्विड और सेमी लिक्विड की बात कर रहे हैं ना, देर आर सम केसेस जहां पर आप सॉलिड लुब्रिकेंट की इस्तेमाल करते हैं। एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स फॉर सॉलिड लुब्रिकेंट इज व्हाट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन दी पाउडर्ड फॉर्म, पाउडर्ड ग्रेफाइट, ठीक है, पाउडर्ड ग्रेफाइट, ठीक है। तो देर आर सम केसेस, तो वो बहुत ज्यादा हैवी मशीनरीज जो होती हैं कंटिन्यूअसली, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वहां पर ये लिक्विड तो टिकेगा ही नहीं, लिक्विड तो वहां टिक ही नहीं सकता, ठीक है, वो बह करके निकल जाएगा, ठीक। दैट्स व्हाई वी नीड सच लिक्विड लुब्रिकेंट्स जो कि वहां टिक सके, ठीक है ना, इतना ज्यादा। तो वो देखेंगे हम लोग 6th यूनिट में, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? नो, बताएं भाई। नहीं आई बात समझ में? अब्दुल्ला, आप पहले तो अपना माइक बंद करें। और अभी आपने जो बताई थी ये अपनी लुब्रिकेशन वाली, तो अगर इसमें इस स्पीड कम ज्यादा होगी तो शाफ्ट में वाइब्रेशन आएगा ना, हाँ जैसे देखिए एक अभी, ही। हाँ 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 हाँ, यही तो बात है। देखिए इस, ये जो आपकी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग की सबसे खास बात यही है कि आप हर जगह स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स नहीं यूज करते हैं। देर आर स्पेसिफिक केसेस जहां पर आप की जो स्पीड है और जो मशीनरी है वो कंटिन्यूअसली चलती चली जा रही, कंटिन्यूअस मोशन है, कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है ना। एक एक महीना मशीन आपकी बंद ही नहीं हो रही, ठीक है, चल रही है, साल साल भर चल रही है। तो वहां पर ऐसी जगह पे आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, जहां पर आपको लग रहा है कि हर 10 मिनट में बंद चालू करना है, वहां पर इसको थोड़े इस्तेमाल करेंगे। वो तो शाफ्ट ऐसे ही घिस जाएगी, अगर आप फ्रीक्वेंट ऑन एंड ऑफ करेंगे तो ये शाफ्ट तो ऐसे ही घिस जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि जब ऑफ पोजीशन में रहेगी, जब रेस्ट पोजीशन में रहेगी, तब तो ये कांटेक्ट में रहेगा ना, मेटल टू मेटल कांटेक्ट रहेगा, ठीक है ना। यस और सर। तब जब स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग में देर इज सम फ्रिक्शन, वेरी हाई फ्रिक्शन, मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, तो उसकी वजह से इसका वियर होगा, शाफ्ट का वियर होगा, ठीक है ना, शाफ्ट घिसेगी आपकी, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल ही ऐसी जगह किया जाता है जहां पर आपकी रोटेशनल स्पीड बहुत ज्यादा हाई होती है और कंटिन्यूअस मोशन होता है, महीने महीने भर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, साल साल भर चल रहा है, उसके बाद उसको रोकना नहीं है, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल पावर प्लांट्स, ठीक है, वहां पर शाफ्ट चल रही है महीनों महीने, ठीक है, साल साल भर चल रही है टरबाइन, ठीक है, तो वहां पर ऐसी जगहों पे आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जहां पर आपको फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप ना करना हो, ठीक है। हरी बात समझ में ये चीज? यस सर। ओके, नाउ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्लेन बेयरिंग्स और जर्नल बेयरिंग्स, ठीक है, और स्लीव बेयरिंग्स, ठीक है। इफ द सरफेस ऑफ द शाफ्ट स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द बुश, ठीक है ना, सरफेस ऑफ द बुश, और इसे कहते हैं हाउसिंग, इसे कहते हैं हाउसिंग भी कहते हैं, ठीक है, रिजल्टिंग इन द फ्रिक्शन एंड वेयर. In order to reduce the friction, these two surfaces are separated by a film of lubricating oil, and the bush or the housing is made of special bearing metals, ठीक है ना, जैसे हम व्हाइट मटेरियल मेटल हो गया या फिर ब्रॉन्ज, क्योंकि इनकी भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है म्यू वो काफी कम होता है, ठीक है, ब्रॉन्ज का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो कम होता है काफी, तो दैट्स व्हाई सच स्पेशल मटेरियल्स आर यूज्ड, ठीक है। ओके, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्रैंक शाफ्ट, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट बेयरिंग्स इन पेट्रोल एंड डीजल इंजन, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, large size electric motors, steam turbines and gas turbines, concrete mixers, rope conveyor and मरीन इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, ये सभी ऐसी मशीनरीज हैं जहां पर आपका कंटिन्यूअस मोशन होता है और वेरी हाई स्पीड पे होता है, ठीक है ना, तो इनको इस्तेमाल करने का कंडीशन ही यही है, इनको इस्तेमाल करने का कंडीशन ही यही है कि आपकी स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, और क्या है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट स्टॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बात? नाउ कमिंग टू दी रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, ठीक है ना, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में क्या होता है भाई? रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में कुछ नहीं होता भाई, सिंपल क्या होता है कि आपके चार कंपोनेंट्स होते हैं, फर्स्ट वन इज इनर रेस, इसे कहते हैं इनर रेस, दिस वन इज आउटर रेस, एंड दिस वन इज क्या है ये? केज का काम होता है रोलिंग एलिमेंट्स के बीच में गैप बना के रखना, कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे रोलिंग एलिमेंट्स एक जगह इकट्ठे हो जाएं, तो ये इनके बीच में डिस्टेंस मेंटेन करता है, एंड दीज आर दी रोलिंग एलिमेंट्स, ठीक है। सो अच्छा, इनर केस पे भी एक ग्रूव होता है, खड्डा, ठीक है ना, ऐसे खड्डा सा होता है, ये आप देख सकते हैं, एंड सेम ग्रूव इज कट ऑन दी आउटर रेस ऑल्सो, आउटर रेस पे भी एक ग्रूव कट होता है, ठीक है ना, एक ग्रूव कट होता है, ठीक है, जिसमें ये बॉल्स या रोलिंग एलिमेंट्स जो होती हैं वो जाकर के सेट होती हैं, ठीक है ना, इन्हीं में आपकी ये रोलिंग एलिमेंट्स जाके सेटल होती हैं, ठीक है, सेटल होती हैं, एंड वन ऑफ दी रेस, इनर रेस और आउटर रेस मूव करती है, ठीक है, तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपकी जो इनर रेस होती है यही जो होती है मूव करती है, ठीक है। सो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स आर आल्सो नोन एज sorry, I just it was my mistake, the slide has been repeated, okay, so इसको आप रहने दीजिए, इसको कट करना है, ये बाय मिस्टेक हो गया है ये, ठीक है ना, तो it has been repeated, ठीक है। रोलिंग कॉन्टैक्ट, देखिए रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स में आपके क्या क्या चीज होती है? चार कंपोनेंट्स होते हैं, रोलिंग एलिमेंट एंड इनर रेस, आउटर रेस एंड द केज टू सपोर्ट दी रोलिंग एलिमेंट्स, ठीक है। एंड इसमें जो फ्रिक्शन कम होता है, फ्रिक्शन का जो रिडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है?
रोलिंग एलिमेंट के मूवमेंट की वजह से, रोलिंग एलिमेंट के मूवमेंट की वजह से, रोलिंग एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट जो होता है वो उसके मूवमेंट की वजह से, रोलिंग एलिमेंट मूवमेंट की वजह से हमारा फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, मूवमेंट की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूसेस, फ्रिक्शन रिड्यूसेस। ठीक है, ठीक। क्यों भाई, ये तो हम सबको मालूम है कि क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा कम होता है किससे, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। रोलिंग फ्रिक्शन rolling friction is very less than sliding friction। ठीक है, तो शाफ्ट के बीच में, मतलब दो शाफ्ट या कह लीजिए शाफ्ट और हाउसिंग के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है वो स्लाइडिंग की जगह हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रोलिंग में। ठीक है ना, तो उसकी वजह से हमारा फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। एंड दैट्स हाउ इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। कैसे, स्लाइडिंग मोशन को हम लोग रोलिंग मोशन में कन्वर्ट कर देते हैं यूजिंग रोलिंग एलिमेंट्स और रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। ठीक है, एंड दीज एलिमेंट्स, ये जो रोलिंग एलिमेंट्स हैं ये किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है ना, आपके स्फेरिकल बॉल्स भी हो सकते हैं, स्फेरिकल बॉल्स। ठीक है, अगर बॉल्स हैं तो इन्हें बॉल बेयरिंग्स कहते हैं, और सिलिंड्रिकल रोलर्स भी हो सकते हैं, सिलिंड्रिकल रोलर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम रोलर बेयरिंग्स भी कहते हैं, रोलर बेयरिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, रोलर बेयरिंग्स भी कहते हैं। इनका एप्लीकेशन देख लेते हैं। मशीन, हाँ, इनका जो एप्लीकेशन होता है ये इन जनरल हम लोग आसपास देखते भी हैं। ठीक है ना, छोटे एप्लीकेशन, छोटे डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है आपके घरों में। क्या नाम है, जितनी भी डिवाइसेस हैं सब में हर जगह जो बेयरिंग लगी हुई है वो कौन सी है भाई, यही रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स ही हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स ही हैं। चाहे आपके यहाँ घर में ड्रिल मशीन हो, चाहे आपके यहाँ पंप, जो घरों में पंप लगा होता है, ठीक है, और कोई भी मशीन हो, साइकिल में जो आपकी बेयरिंग्स हैं वो भी कौन सी हैं, यही बेयरिंग्स हैं, रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग्स। ठीक है, गियर बॉक्सेस, स्मॉल साइज इलेक्ट्रिक मोटर्स, रोप शीव्स, क्रेन हुक्स एंड होइस्टिंग। ठीक है, तो दे आर यूज्ड फॉर लो लोड्स, लो एंड medium loads at कौन सी स्पीड, लो एंड मॉडरेट स्पीड्स के लिए, मॉडरेट स्पीड्स के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और आप इसमें फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है ना, जब चाहे तब, तुरंत, ऐसा नहीं है हर 5 मिनट में तुरंत का तुरंत बंद और स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट एंड स्टॉप, ठीक है, इज अलाउड। ठीक है, बट स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में आपका क्या, फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप अलाउड नहीं है, फ्रीक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप अलाउड नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। सर एक क्वेश्चन था, क्या कह रहे ये हैं? अपना जैसे लो लोड और मीडियम लोड जो बोल रहे हैं तो कितनी रेंज रहती है, जैसे लो लोड बोल रहे हैं तो कितने तक रहना चाहिए, क्या लिमिट है? एज सच कोई क्लियर लिमिट नहीं है, एज सच कोई क्लियर लिमिट नहीं है कि इतने पे ही आपका लो लोड ही होगा या मॉडरेट लोड होगा। ठीक है ना, बट यू कैन से 5 to 10 किलो न्यूटन्स। ठीक है ना, दीज कैन बी कंसिडर्ड एज लो एंड मीडियम लोड रेंज। ठीक है, बट देर इज नो क्लियर मार्क की मतलब ये लो लोड कहलाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? यस। एंड देर आर स्पेशल केसेस जहां पर आपको लोड बढ़ाना होता है तो आप रोलिंग एलिमेंट जो है वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यू कैन बियर मच हायर लोड इन द रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग ऑल्सो। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में आप रोलिंग एलिमेंट चेंज कर दें तो भी आप अच्छा खासा लोड बियर कर सकते हैं, यू कैन बियर वेरी हाई लोड्स ऑल्सो। ठीक है, देर इज नो, बट दिस इज इन जनरल। ठीक है ना, ये जनरल केस है,
आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिल जाएंगे जहां पे आप वेरी हाई लोड यूजिंग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग्स भी बियर करते हैं, ठीक है। ओके ओके नाउ ओके, एक्चुअली क्लास का टाइम आप हो चुका है एंड आई हैव अ मीटिंग शेड्यूल्ड, सो we'll leave it here and from कल आपकी एक क्लास है, पहली क्लास, प्लीज बी ऑन टाइम, ठीक है। तो हमें ये असल में यूनिट बहुत जल्दी जल्दी खत्म करनी है, थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट करें, ठीक है। टिल नाउ एनी डाउट, कुछ डाउट वगैरह हो तो बताइए भाई। नो, तो आज हम लोग इसको यहाँ पे ही रोकते हैं क्लास को, एंड ऑल ऑफ यू आर रिक्वेस्टेड कि इसे आप पढ़ें थोड़ा सा, ठीक है। एंड वी विल, ताकि थोड़ा सा मुझे समझाऊं तो आप लोग की जो आपकी क्वेरीज वगैरह हो तो वो आप आसानी से पूछ सकें, ठीक है। ओके ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। यस।